Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter election and representation, and under this chapter we were discussing about the various provisions which were made by our constitution makers regarding in order to ensure free and fair elections. And in this direction, the first step that was taken by our constitution makers was the universal adult franchise, which is the right to vote was given to all the adult citizens of the country without any discrimination. And this was seen as a great challenge by the outside world, because there was illiteracy in our country, there was poverty in our country at that time, and it was believed that India will not be successful in conducting elections and all because of this poverty and illiteracy. And this right to vote, which was given to all the people without any discrimination, will cause trouble in the establishment of democracy in the country. But actually everything was proved wrong, and the people of India proved that democracy can be successful in a poor and illiterate country also. And with this right to vote, the constitution has also given us the right to contest election. Okay. And after this we have discussed this right to contest election is also without any discrimination. Only people who are convicted by the court for any crime for 2 years or more, they are not eligible to contest the election. Other than that, there is only criteria of citizenship and age. Age is different for different elections, and that is these two are the only criteria. So in this way we see our constitution makers were very much keen to make India a real democracy, and that is why these provisions were made in the constitution. Other than this, what is very, very important in order to ensure free and fair election is that the election must be conducted by an independent organ or by an independent agency. If the election is to be conducted by such agency which is under the government, then in that situation elections can never be impartial and fair, free and fair, because government always belongs to a political party. And if the body which is there to supervise the election, and that body is working under the government, then it will not be able to work independently. So our constitution makers made provision for an independent election commission in order to supervise the प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा प्रोविजन किया कि ये होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एंड दिस वाज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 324 क्लॉज 1. An independent election commission will be there to supervise the process of election. Okay. And this it will also direct and control all the process of election, and this commission will work for the election of the Lok Sabha, the state legislative assemblies, the president and the vice president. Okay. And we were discussing about the composition of this election commission. What is the composition? And in this regard we have seen कि क्या composition है. Our election commission was a single member committee till 1989, but in 1989 what happened कि some changes occurred in the composition of election commission. And what were those changes? The changes were कि single member
कमीशन से इसको मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया गया बिफोर द इलेक्शंस ऑफ 1989 एंड just after the election then again it was reverted to single member commission. इलेक्शन जब हो गया उसके बाद फिर से इसको सिंगल मेंबर कमीशन बना दिया गया एंड देन अगेन इन द ईयर 1993 इट वाज अगेन मेड द मल्टी मेंबर कमीशन एंड फ्रॉम 1993 टिल टुडे द कमीशन इज मल्टी मेंबर. ठीक है, अभी तक हमारा जो कमीशन है वो मल्टी मेंबर कमीशन ही है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर देन दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर देयर आर अनदर इलेक्शन कमिश्नर्स, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. तो ये 3 मेंबर कमिटी है और जब इसको 3 मेंबर कमिटी बनाया गया तो एट दैट टाइम सम कंट्रोवर्सी अरोज. व्हाई दिस कंट्रोवर्सी अरोज? बिकॉज अगर पहले वो सिंगल मेंबर था, सिंगल मेंबर का मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल मेंबर? देयर वाज ओनली 1 मेंबर, तो ही वाज ऑल इन ऑल, है ना. बट नाउ क्या हुआ कि 2 मोर मेंबर्स आर देयर. तो अब ये कंट्रोवर्सी आया कि कैसे, किसकी कितने पावर्स हैं. ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके ज़्यादा पावर्स होते हैं. सो द मैटर वेंट इनटू द कोर्ट and then the according to the ruling of the court, it was the interpretation of the constitution by the court that all the election commissioner, be it chief election commissioner or election commissioner, everyone has same powers. ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़्यादा पावर होता है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके कम पावर होते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है. ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि हाँ, जो मीटिंग होगी दैट मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. दैट्स ऑल. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ नो मोर पावर. इससे ज़्यादा कोई पावर उसके पास नहीं है. ही विल ओनली प्रिसाइड द मीटिंग्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ओके, एंड वॉट एवर इज आवर एक्सपीरियंस, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ the election commission is multi-member then it will work more democratically because as I told you yesterday also, it is easy to influence a single person but three members cannot be influenced by the government, है ना. जो भी रूलिंग पार्टी है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है एक सिंगल मेंबर को, बट तीनों के तीनों मेंबर को इन्फ्लुएंस करना मुश्किल होता है. तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी हेल्दी डेवलपमेंट इफ़ वी कंसिडर इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्शन पर ही डिपेंड करती है. और अगर इलेक्शंस जो कंडक्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ नॉट वर्किंग डेमोक्रेटिकली, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट, देयर विल बी नो डेमोक्रेसी. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर और इम्पार्शियल वे में काम करे. एंड व्हाट वी फाइंड कि दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन there is provision for the appointment of the election commissioner, chief election commissioner and other election commissioner. They all are appointed by the president. And how does the president work? The president work on the advice of the council of minister. ठीक है, council of minister के advice से काम करता है. So in this appointment what we see that there can be influence of the government because council of minister, the head of the council of minister is prime minister and the whole team is belonging to a particular party or a particular alliance we can say. तो इनके ही एडवाइस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना है. तो ये इस तरह से कभी ऐसा हो सकता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जो एडवाइस देगी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, वो ऐसा एडवाइस दे कि किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे पर्सन को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए जो कि पार्टीशन हो, मतलब जिसका
रूलिंग पार्टी की तरफ जो इंक्लाइंड हो, इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और अगर इफ सम सच पर्सन इज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर who has inclination towards the ruling party, then in that case all the process of election will be under threat. उन सब पे एक थ्रेट आ जाएगा कि वो उसमें अनडेमोक्रेटिक वे में काम हो सकता है. सो देयर इज सजेशन कि दिस प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ election commissioners should be changed. The president should not be advised only by the prime minister and the council of minister, but the president should consult also with the leader of the opposition as well as the chief justice of the India. Then only the appointment should be done. So this is also important. बिकॉज जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, हम उसको नहीं कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस इज एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. सो देयर इज नीड टू मेक सम चेंजेस. मे बी इन फ्यूचर हम इस तरह के अमेंडमेंट्स जो हैं वो आ जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन. And in this election commission, we are discussing about the appointment of CEC. What is this CEC? Chief Election Commissioner and ECs, Election कमिश्नर्स. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. तो इनके अपॉइंटमेंट को हमने देखा कैसे होता है. एंड नाउ वी विल सी देयर रिमूवल. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ देयर रिमूवल, व्हाट इज देयर टेन्योर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टेन्योर है एंड देन रिमूवल. Tenure means they will hold post for what period, and removal, though they have a fixed tenure, still they can be removed on some grounds. So we will discuss this. First of all, tenure. Our constitution makers ensure the security of the tenure of the chief election commissioners and election commissioners. Why this security of tenure is important? Because if we want that the election commission should work independently, it should work without any kind of fear, then it is very important that their tenure must be secure. If they are always in fear कि उनको president जो है वो कभी भी remove कर सकते हैं on the advice of the council of ministers, then in that situation the election commission will not be able to work independently, because in that situation it will work under fear. और इस fear से कि कहीं उनको remove ना कर दिया जाए, the person will work according to the desire of the council of minister and prime minister, कि उनको खुश करके चले भाई कहीं हमें रिमूव ना कर दिया जाए, बीच में ही हमारी टेन्योर खत्म ना हो जाए. ठीक है. तो बिकॉज वी ऑल आर सेल्फिश, है ना. सबसे पहला जो हमारा ह्यूमन नेचर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम कहेंगे ट्रेट है, वो यही है कि हम सेल्फिश होते हैं. तो हमें सबसे पहले अपने, अगर हमें टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम यही सोचेंगे कि हमको इंडिपेंडेंटली काम करने से नहीं मतलब है. हम जिसके भी कंट्रोल में हमारा टेन्योर है, whoever is controlling the tenure, और जिसके भी रहमो करम पे हम हैं, हम उसको चाहेंगे कि वो हमसे खुश रहे. और इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है दैट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड प्रोविजन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द CEC एंड EC. एक बार जब आप अपॉइंट हो गए एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर
and election commissioner, then you are appointed for a period of 6 years. ठीक है, ये जो इनका टेन्योर है वो 6 years के लिए अपॉइंट होते हैं, या देयर आर टू प्रोविजंस, या तो उनका अपॉइंटमेंट 6 years के लिए होगा और दे विल कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65. ओके, अगर सपोज करो किसी ने सीईसी का पोस्ट किसी को मिलता है एट द एज ऑफ 61. ठीक है, अगर उसको 61 years के एज में वो सीईसी बन रहा है तो ही विल नॉट होल्ड द पोस्ट फॉर 6 years. He will be retired when he will attain the age of 65. मीन्स यहाँ पर इसका टेन्योर कितना हुआ, ये 4 years का टेन्योर हुआ. क्यों 4 years का टेन्योर हुआ? बिकॉज वो 65 years का हो गया तो 65 के आगे नहीं जा सकता है ये. ठीक है, उनका टेन्योर या तो 6 years होगा या 65 years ऑफ एज होगा. जो भी पहले आ जाता है उसी के अकॉर्डिंगली उनका टेन्योर खत्म हो जाता है. सपोज किसी ने 59 years में बन गया वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नॉट 59, सपोज 58 years में बन जा रहा है. ठीक है, अब 58 years में बना तो ही विल नॉट होल्ड द पोस्ट टिल द एज ऑफ 65 years. ठीक है, ही विल होल्ड द पोस्ट ओनली फॉर 6 years, यानी कि 64 year में जब वो 64 years का होगा तो वो उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने 6 साल अपना टेन्योर पूरा कर लिया. तो जो भी पहले आएगा इधर 6 years और 65 years ऑफ एज, whichever is earlier. जो भी पहले होगा वो उसके हिसाब से उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, एंड नाउ वी विल सी कि ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब वो 6 साल के पहले या फिर उनके 65 years ऑफ एज के पहले उनको हटाया ही नहीं जा सकता. देयर इज प्रोविजन टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्ट बिफोर कंप्लीटिंग देयर टेन्योर. ठीक है, टेन्योर पूरा होने के पहले भी उनको हटाया जा सकता है. देयर इज प्रोविजन फॉर दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड हाउ इट इज डन? इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. President can remove him, but how the president can remove him? The president cannot remove him on the advice of the prime minister or and council of minister. नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे अपॉइंटमेंट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं. रिमूवल इज नॉट लाइक दैट. अगर रिमूव करना है तो वो तभी पॉसिबल है जबकि पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से इस तरह का रिकमेंडेशन करें कि इनको हटाना है. रिमूवल का जो रिकमेंडेशन आएगा वो पार्लियामेंट के हाउस की तरफ से आएगा और वो तब उसको माना जाएगा जबकि पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अलग अलग वो उनके रिमूवल का जो वो है रिकमेंडेशन है वो पास हो गया है स्पेशल मेजॉरिटी से. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? Special majority is स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि पहले चीज जो इसमें हमें चाहिए वो ये चाहिए कि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 51% ऑफ टोटल मेंबरशिप.
जब भी हम सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 1 मोर देन हाफ, आधे से एक अधिक, ठीक है। 51%, दैट इज 1 मोर देन हाफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ प्लस 1 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ओके। तो जो भी आधा है उससे एक अधिक अगर हमें वोट मिल जा रहे हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिंपल मेजोरिटी। अब हमें हम वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल मेजोरिटी, है ना। अब ये स्पेशल मेजोरिटी कैसे होगी? एक तो इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, और सिंपल मेजोरिटी के अलावे जो इसमें हमें ज़रूरत होती है वो ये होती है कि 2/3 मेजोरिटी of present and voting. This is important to understand. स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी के बीच का डिफरेंस अगर एक बार समझ लेने से क्या होगा कि हमेशा का काम खत्म, है ना। तो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। सिंपल मेजोरिटी जिसमें कि हमको 51% ऑफ द वोट्स चाहिए, एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। दिस इज नॉट अबाउट टोटल मेंबरशिप, ओके, दिस इज अबाउट द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट ओनली प्रेजेंट होने के साथ साथ वो वोटिंग भी कर रहे हैं, उनका हमको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह में अगर सपोज जहाँ पर हम देख रहे हैं, सपोज टोटल मेंबरशिप इज 100, ठीक है, 100 जो है वो टोटल मेंबरशिप हमारी है। अब इस 100 का हमें कितना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें इसके लिए पहले तो 51% इसका चाहिए, है ना। तो 51 वोट चाहिए, एंड जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 चाहिए। सपोज प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो 90 है, 90 मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड दे आर वोटिंग ऑल्सो। तो दिस विल बी 3 3 9 60, ओके। तो सिंपल मेजोरिटी में 51 चाहिए और यहाँ पर हमें 60 चाहिए। तो इस तरह से स्पेशल मेजोरिटी को अगर इन दोनों को हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं तो इन ऑर्डर टू पास अ रेजोल्यूशन देयर विल बी नीड ऑफ 60 वोट्स, ठीक है। जब 60 वोट्स मिलेंगे तभी उसको हम रेजोल्यूशन को पास मानेंगे, ठीक है। तो जितने लोग आ रहे हैं और जितने लोग वोट कर रहे हैं उसका 2/3 चाहिए होता है। सो this is not easy to get this 2/3 majority, and that is why it has been made complex by our constitution makers कि वो इतना complex हो कि उनको हटाना आसान नहीं हो। अगर suppose it was very easy to remove them from their post तो क्या होता? Then again there will be influence of the government, because पार्लियामेंट में भी तो रूलिंग पार्टी ही होती है, पार्लियामेंट के अंदर भी तो जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी होती है इन द लोकसभा। तो फिर से हम वो ये देखते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया इलेक्शन कमीशन पे, बट द प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, सो इट इज मेड डेलिबरेटली ताकि इनको हटाना आसान ना हो। एक बार जब हम सीसी या ईसी बन जा रहे हैं तो फिर हमारे बीच में हमको रिमूव करना इजीली रिमूव नहीं किया जा सके, ओके। एंड नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को क्या फंक्शन दिया गया है, ओके। Functions of the election commission. In this regard you must know that
The Election Commission of India is one of the most powerful election commissions of the world. Our constitution makers has given wide-ranging powers and functions to this commission, and the purpose was to make the commission powerful so that the elections can be conducted in a free and fair manner. Democracy can be made real in our country. That was the main purpose. And now we see what are the functions of the election commission. The first function is to supervise the preparation of the voters list. वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर करना, उसका प्रिपरेशन को सुपरवाइज करता है. एंड इट इज अ वेरी वेरी टफ टास्क टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग. हर समय इसमें चेंज होता रहता है बिकॉज people used to move from one place to another. New voters are coming up after the attainment of the age of 18. हर समय नए वोटर्स आ रहे हैं. बिकॉज ऑफ डेथ्स पुराने वोटर्स को निकालना है. तो ये जो काम है ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, और ये हमेशा अपडेट करने की इसको नीड पड़ती है बिकॉज इट इज़ चेंजिंग. ये नहीं कि एक बार वोटर लिस्ट बना दिए तो मतलब आराम हो गया. ये हमेशा इट कीप्स चेंजिंग. इसमें हमेशा इसको अपडेट करने की ज़रूरत होती है. एंड कई बार होता है कि इसमें एरर्स भी आ जाते हैं. तो एरर नहीं आना चाहिए बिकॉज इफ़ there is error in the voter list, then there will be no meaning of the universal adult suffrage which is given by our constitution makers. तो इस बात का जो के लिए who is responsible for all these preparation and updating of the voter list? The election commission is responsible. Okay. मैनी टाइम्स वी सी कि बहुत सारे एरर हो जाते. कभी जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम भी वोटर लिस्ट में रहता है. देन कभी जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका नाम नहीं होता है वोटर लिस्ट में. ठीक है. कई बार ऐसे लोगों का नाम होता है वोटर लिस्ट में जो कि हैं ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और ये नहीं होनी चाहिए. दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर टू सी कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो. तो इसके लिए वो सुपरवाइज करते हैं. ओके. एंड आफ्टर दिस प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट, द सेकेंड थिंग which is done by the election commission or the function which is given to the election commission is to determine the timing of election and prepare the election schedule. election का पूरा शेड्यूल तैयार करना, कब इलेक्शन होंगे, कितने फेजेस में इलेक्शन होंगे, ये सारे चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है. और सबसे पहले क्या होता है इस रिगार्ड में, जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो फर्स्ट चीज़ जो आती है वो है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन होना है. ठीक है. कब होना है, कितने फेजेस में होना है. देन देयर इज डेट फ्रॉम विच नॉमिनेशन कैन बी फाइल्ड. कब से अगर किसी को कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो इन ऑर्डर टू कंटेस्ट द इलेक्शन दे हैव टू फाइल द नॉमिनेशन. द कंटेस्टेंट्स जो हैं उनको नॉमिनेशन फाइल करनी होती है. तो नॉमिनेशन फाइल करने की डेट कब से, फ्रॉम विच डेट दे कैन स्टार्ट फाइलिंग द नॉमिनेशन. देन लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन, कौन सा लास्ट डेट होगा, उसके बाद वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते हैं. देन जब नॉमिनेशन वो फाइल कर देते हैं कि हम यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, इसका नॉमिनेशन फाइल करने का यही मतलब हुआ कि हमने एक फॉर्म फिलअप किया कि आई वॉन्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, द कमिंग इलेक्शन फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूएंसी. ठीक है. हमने अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिया. अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है. स्क्रूटनी क्या हुआ, उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है. ठीक है. कि उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सही हैं या नहीं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशंस तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं भरा गया. कई बार बहुत सारे लोगों की नॉमिनेशन कैंसिल हो जाती है बिकॉज ऑफ एरर, तो उसकी स्क्रूटनी की जाती है. तो स्क्रूटनी का भी डेट आता है कि लास्ट डेट क्या है स्क्रूटनी की. देन मेनी टाइम्स जिसने नॉमिनेशन फाइल किया है कभी कभी वो विथड्रॉ भी कर जाते हैं. बाद में उनको मन हो गया कि नहीं, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उनको फिर विथड्रॉ करने का भी ऑप्शन दिया जाता है. इफ यू वांट टू विथड्रॉ देन देयर इज लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल ऑल्सो.
ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ पोलिंग, पोलिंग की क्या डेट्स होनी है, देन काउंटिंग की क्या डेट्स होगी, किस डेट पे, आफ्टर द पोलिंग देयर विल बी काउंटिंग एंड आफ्टर द काउंटिंग देयर विल बी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो एवरीथिंग इज डन बाय द election commission. This is the major function of the election commission. So we will continue with this discussion in the next class.